Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I am Shahad Wahid and I am addressing you from the platform of Punjab Group of Colleges. And you know very well we have started chapter number of course 10 and we are going to discuss, or rather we are discussing the one of the very great phylum that is called as what? Cnidarians, or rather Cnidarians. और इसका जो मैंने आपको एक और नाम बताया that was nothing other than Cnidaria, right? So आए हम इसकी फर्दर बातें करेंगे किस में? पार्ट 2 में. सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जाहिर है हमने आपको उसका छोटा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था. आज हम उस पर्टिकुलर टॉपिक मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे. रिप्रोडक्शन करवाने वाला ऑर्गेनिज्म जाहिर है उसके पास क्या होने चाहिए? गॉनेड्स होने चाहिए, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो द ऑर्गेनिज्म in case the Cnidaria or Cnidarians that is going to carry out the process of sexual reproduction is basically a medusae, and that particular medusae is basically a zooid, an animal that is provided with the what? Gonads. सवाल ये है कि ये मेडुसी कहाँ से डेवलप होते हैं? तो आंसर ये है कि ये स्पेसिफिक किस्म के पार्ट ऑफ द बॉडी से डेवलप होंगे जिससे हम अगर नाम देते हैं ब्लास्टोस्टाइल. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस इमेज. इट इज एन इमेज ऑफ व्हाट? Obelia. And Obelia is basically a colonial organism that is exhibiting both, you can say, polyp stage and medusae stage, right? In this particular organism, look at this. There is a funnel-like structure, and that very funnel-like structure is called as a what? Blastostyle. These particular organisms definitely they have the gametes, and these particular gametes they are basically producing on the external surface of the medusae. Right, although these particular medusae are lying in the blastostyle, but I am talking about the surface of the medusae, right? These particular external gametes, they are basically being released in the form of bundles. Particularly this very character is very common in corals, right? And that very character, that very feature, it is very much visible at night. It is because these particular corals they do not carry out the process of reproduction in the daytime, so they carry out process of reproduction at night. और night के time पे अगर आप इसको study करना चाहेंगे तो literally you have to jump into the sea having oxygen containers on your back and definitely more powerful lights. And if you are equipped with these things, then you will be able to see the very spectacular scene of the ocean, and that very spectacular scene is the liberation of the packets of the gametes, right? So these particular gametes, they are definitely the packets of either egg or the sperms, but look at this, कितनी ज्यादा मिकदार में ये रिलीज हो रहे हैं जब एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अक्सर ऑर्गेनिज्म एक ही वक्त में इकट्ठे रिप्रोड्यूस कर रहे हों तो हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बायोलॉजी में क्या नाम देते हैं? लाइफ साइंस में नाम देते हैं उसको स्वार्मिंग. So this particular swarming, very spectacular scene it can be seen, and you know very well when sperms and eggs they are released into the environment, we call it as nothing other than external fertilization. So as a result of external fertilization, what will happen? We will have numerous number of what? Zygotes, right? And when zygote forms, it swims for some time, definitely in the free state in the waters of the ocean, and then it settles down. Once it settles down, definitely this organism can convert itself into a static phase. मोशन करने के बाद, मूव करने के बाद ये खास जगह पे आके, एक खास पॉइंट पे आके अपनी जिंदगी को रोक लेते हैं या अटैच करते हैं अपने आप की सरफेस के ऊपर, और वो डेफिनेटली स्टेज क्या हो जाएगी? पॉलिप कहलाएगी, राइट? सो नॉर्मली जो पॉलिप स्टेज होती है वो कैसी होती है? स्टैटिक होती है. इसी पर्टिकुलर चीज को डिसाइड करने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड, एंड दैट इज गोइंग टू डिपिक्ट द सेम थिंग, एंड द सेम थिंग इज called as alternation of generation. Whenever we use the term alternation, तो alternation का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रोसेस में हम किसी चीज को बदलेंगे. हम देख रहे हैं कि हमारे ये नाइटेरियंस बहुत निडर किस्म के ऑर्गेनिज्म क्या एग्जिबिट कर रहे हैं, क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं. तो आंसर इज कि दे आर शोइंग AOG. Whenever I use the term AOG, it means alternation of generation.
There are two types of generation. One of them we have read yet. अभी पीछे वाले कॉलम में पढ़ के आए हैं कि इसकी दो किस्म की क्या होती है, फेजेस होती है. को हम बोलते हैं एसेक्सुअल फेज और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल फेज. बहुत से ऑर्गेनिज्म में ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम the process is going on. Asexual phase is going to produce sexual phase, right? And sexual phase is going to produce asexual phase, right? But unlike other organisms, something like plants, आपने chapter number 9 में ये पढ़ के आए हैं कि they show what? Alternation of generation, where the gametophyte give rise to sporophyte and sporophyte give rise to gametophyte. In that case, that very gametophyte was 1n and sporophyte was 2n. But in this case, there is no difference at all. If asexual phase is 2n, sexual phase is also 2n. तो दोनों का जो वजन है वो बिल्कुल कैसा है, balanced है, right? So both are 2n. The difference is that particular asexual phase, जैसा भी मैंने पीछे वाले कॉलम में बोला था, कि it is usually attached, it is fixed, and normally we call them as polyps, right? On the other hand, अगर मैं इसकी बात करूँ sexual phase, normally इसे हम क्या बोलते हैं, medusae. आप इसके एग्जांपल में बेस्ट क्या हो सकती है, जेलीफिश. आप जो उसकी मोबाइल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली कैरिंग आउट स्विमिंग इन द वाटर्स ऑफ ओशन, दैट इज बेसिकली मेडूसी. और आपको पता है कि मेडूसी कहां से बनते हैं, प्लास्टोस्टाइल से बनते हैं. बट इट इज डेफिनेटली ट्रू फॉर ओबेलिया. नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म. आपको बहुत दफा बता चुका हूं मैं कि जब भी हम वर्ड यूज करते हैं पॉली, इसका मतलब क्या होता है, मेनी. एंड मॉर्फ, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. अगर मेरे पास एक कॉलोनी में, एक ऑर्गेनिज्म में, एक कॉलोनी में मुझे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म इकट्ठे नजर आते हैं, तो मैं ये बोलता हूं कि ये वाले ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर हो रहे हैं. तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म. सो एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़ूओइड्स इन द सेम कॉलोनी इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. फॉर एग्जांपल, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़ूओइड्स. जैसे मैंने बोला, ज़ूओइड के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में मिलकर एक कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस, दीज आर द गैस्ट्रोज़ोइड्स. मैं ख्याल पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको ये बात बिल्कुल पता चल गई है कि जब भी मैं टर्म यूज करता हूं गैस्ट्रो, इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट डाइजेशन. तो गैस्ट्रोज़ोइड्स, इट मींस दीज ऑर्गेनिजम्स आर वेरी मच स्पेशलाइज्ड इन only one most favorite job, that is eat, eat and eat. Yeah, they are specialized. They are really eating and killing and predating and paralyzing machines, right? तो ये सारी बातें जो मैंने बाद में बोली है, जाहिर है वो ईटिंग करने के लिए बहुत जरूरी है. सो इन सारी की सारी फीचर्स जिसमें पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, गैस्ट्रोज़ोइड. फिर इसके अलावा मेरे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं कि दोज आर बेसिकली गोइंग टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, गोनोज़ोइड्स, राइट. फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर हमारे पास कौन सी स्टेज हो जिसे हम स्टैटिक स्टेज बोलते हैं, और ऐसे भी हो सकता है कि वो फ्री स्विमिंग स्टेज पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो ये है हमारे पास डिफरेंट किस्म की क्या पॉलीमॉर्फिज्म जो हमें यहाँ पे नजर आती है. इट मीन्स कि एक बड़ा यूनिक सा ग्रुप है जो मुझे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो कर रहा है और पॉलीमॉर्फिज्म भी शो कर रहा है. एक ऑर्गेनिज्म का दो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाना क्या कहलाता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. वन शुड बी रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, अदर शुड बी प्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली. लेकिन एक ही कॉलोनी के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म का इकट्ठा पाया जाना. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो खाने पीने का काम कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म डिफेंस का काम कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का काम कर रहे हैं. जब ये वाला प्रोसेस, जब ये वाला फिनोमेना डिस्प्ले हो रहा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, राइट. इसी पॉलीमॉर्फिज्म की जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ऑफ कोर्स द ओबेलिया. बहुत दफा जिक्र हो चुका है तब तक इसका. तो ये जो हमारे पास कॉलोनी है, डेफिनेटली इसकी दो फेजेस हो सकती हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड द फिक्स्ड स्टेज, अदर वन इज कॉल्ड द फ्री लिविंग स्टेज. और फिक्स्ड स्टेज की डायग्राम आप देख चुके हैं. वेरी ब्यूटीफुल ग्लासी ऑर्गेनिज्म, transparent see-through organism that is basically attaching itself on the surface of the rock, and it has got branch structure and you can find the gonozoid in it, right, on definitely growing on what, plastostyles. ये अपने सारा पढ़ लिया. अब हम मूव करेंगे इसके एग्जांपल्स में. तो इसकी बहुत सारे एग्जांपल है, समथिंग लाइक हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया, एक्टिनिया एंड द मैड्रिपोरा. मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह. मैं कोशिश करूंगा कि अक्सर आपसे बातें वही करूं जो आपकी बुक में लिखी गई हैं. तो उसके रेफरेंस से हाइड्रा हमारी पहली एग्जांपल है. इस वाले ऑर्गेनिज्म में जो हमारी पॉलिप स्टेज है, मींस द फिक्स स्टेज, इट इज
प्रीडोमिनेंट ज्यादातर पे नजर आती है, बल्कि कहना चाहिए कि मेडूसी इसमें रिड्यूस्ड। अगर आप गौर से देखें तो मैंने इस एम के ऊपर एक छोटा सा क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब ये कि दिस इज नो मोर एग्जिस्टिंग एंड इट इज नॉट शोइंग दैट मच आउजी, बिकॉज कि इसकी जो मेडूसी स्टेज है इट इज वेरी मच रूडिमेंट्री, इट इज वेरी मच रिड्यूस्ड, सो इट इज नॉट कैपेबल ऑफ exhibiting what? Alternation of generation. Now we want to move to the next organism, and that is, oh yes, important thing, कि they belong to the class Hydrozoa. इनके हमारे पास 3 मेजर क्लासेस हैं, उनमें से एक का नाम होता है हमारे पास हाइड्रोजोआ, दूसरे का नाम है साइफोजोआ। लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए जान के डेलिबरेटली, ताकि आप ये वाला सी ना भूल जाओ, मैं इसे स्काइफोजोआ भी बोल रहा हूँ। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज एंथोजोआ। तो मेरे पास 3 मेजर क्लासेस हैं। And now we want to move our favorite, that is called as of course Lobelia. अब ये जो मेरे पास Lobelia है, इसमें P को भी मैंने सही लिखा हुआ है और M को भी सही लिखा हुआ है और इनको बराबर लिखा हुआ है, means this organism is showing both equal domination in the terms of polyp and medusae, यानी कि आपको पॉलिप स्टेज भी नजर आ रही है और मेडूसी स्टेज भी नजर आती है और they are existing in the same colony, right? तो therefore they are showing augy. तो इस लिहाज से हम इस पर्टिकुलर आउजी को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं और उसके ऊपर एक गुड लगा देते हैं, राइट? एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह, परहैप्स इन द ओशंस, एंड दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड एज जेलीफिश, राइट? अब अगर आप इस पर्टिकुलर जेलीफिश को देखेंगे तो इसमें जो पॉलिप स्टेज है इट इज, मैंने कट गया हुआ है इसको, इट इज रिड्यूस्ड, ये बहुत रिड्यूस्ड है। और इसकी जो मेडूसी स्टेज जो आप लोगों को समंदर पे राज करती हुई नजर आती थी किसी जमाने में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, जाहिर जस्ट आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ व्हाट पोरिफर्स, आपको पता है जिस चीज ने डोमिनेट किया, हमारे ओशंस को भर दिया, दैट वर नथिंग अदर देन द सिलेंट्रेट्स। तो मैं इन पर्टिकुलर सिलेंट्रेट्स की बात कर रहा हूं, परहैप्स द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ऑर्गेनिज्म इन द ओशन, राइट? दे आर बेसिकली जाली, और आपको पता है कि इस पर्टिकुलर जिलेटिनस ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है, एंड दैट वेरी अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर it is basically provided with many things but in a very very simple way. For example, look at this. आप लोगों को इस अम्ब्रेला के नजर आ रहे हैं चमकते हुए ये horseshoe shape structures. These are basically their gonads, right? और इसी वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं कि ये उसकी सेक्सुअल फेज है और फ्री लिविंग है। फिर इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसके नीचे आप आमतौर पर देखेंगे तो यू विल फाइंड द मेनोब्रियम और समथिंग लाइक अ माउथ, एंड दैट वेरी मेनोब्रियम और माउथ इज सराउंडेड बाय any intelligent guess? Yes, आप में से लोग बोलेंगे सर कि इसके माउथ के बाहर तो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हालांकि वो वाली चीज जो इसके मेनोब्रियम या माउथ के बाहर हैंग कर रही है, इट इज नॉट टेंटिकल्स, दीज आर बेसिकली इट्स ओरल आर्म्स। सो वेयर डज द टेंटिकल्स एग्जिस्ट? तो आंसर इज वेरी क्लेवर ऑर्गेनिज्म, एंड दिस पर्टिकुलर क्लेवर ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली प्रोवाइडिंग टेंटिकल्स ऑन इट्स मार्जिन। भाई जाहिर इसको अटैक होने खतरा कहां से हो सकता है, जरा साइडों से हो सकता है, और इस अपनी अम्ब्रेला को फोल्ड करके अपने टेंटिकल्स तक भी पहुंच सकता है, अपने ओरल आर्म तक भी पहुंच सकता है। तो इसने क्या किया कि इसने अपने टेंटिकल्स को अपने अम्ब्रेला के साइड्स पे लगा लिया, राइट? सो दिस वेरी क्लेवर ऑर्गेनिज्म इट इज प्रोवाइडेड विद द नेमेटोसिस्ट। आपको पता है हमने कल बहुत डिटेल डिस्कस किया था कि नेमेटोसिस्ट क्या होते हैं, हाउ दे एक्ट एज पॉइजनस हार्पून्स, राइट? सो वी वांट टू मूव फॉरवर्ड। हम देखेंगे कि ये जो मेरे पास ऑर्गेनिज्म है जेलीफिश, इट बिलोंग्स टू द क्लास साइफोजोआ, राइट? और इसके टेंटिकल्स कहाँ डिस्कस किया हम लोगों ने, वेयर इज द ओरल आर्म, ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, और बेसिकली गॉनेड्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये भी डिस्कस कर लिया, राइट? अब जो ये वाले ऑर्गेनिज्म है ये काफी बड़े भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ जेलीफिश की बात करूँ, इट कैन बी 3 feet in diameter and more than 3 meter tall, sorry. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द अम्ब्रेला टू द यू कैन से ओरल आर्म, पूरी लेंथ की बात करूं, इट कैन बी वेरी ह्यूज वन। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक और ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है प्राया। ये अपना नहीं है बल्कि प्राया है। लुक एट दिस, आई हैव रिटन कि इट्स साइज इज 120 feet। आप इमेजिन करें कि ये कितना लंबा चौड़ा ऑर्गेनिज्म है। परहैप्स हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे ओशन का सबसे जायंट ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज कि अगर मैं इसके साइज को कंपेयर करूं तो ब्लू व्हेल भी इससे छोटी है, राइट? ऑल्दो ब्लू व्हेल इज मच मोर मल्टीसेलुलर एंड मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका जो साइज है ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक फैले हुए टेंटिकल्स पे कंसिस्ट करता है और ये ब्लू व्हेल से बड़ा हो जाता है।
इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर एक बड़ी खूबसूरती एक में नजर आती है, वो ये है कि इसके पास परहैप्स दुनिया की सबसे प्रिमिटिव आई पाई जाती है, that can differentiate between the presence or absence of light, and that very primitive eye is called as anoscillus, right? So I have written it for you, that is the anoscillus. These are the perhaps the most primitive eyes. And now we want to move to the next group, another very lovely group, and that was called as the sea anemone group. These particular sea anemones, they are basically polyps in, you can say, origin. Their medusa is almost reduced, and it is basically inoculated in that same you can say polyp stage. Or if you look at their cylindron, you know cylindron, that is a gastrovascular cavity of these organisms. So they are basically divided into mesenteries, and look at this. If we want to find their class, so they are basically anthozoans. They belong to the class Anthozoa. अब इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर पे उस जगह पे रहते हैं कि जहाँ रोशनी अवेलेबल होती है, तो नॉर्मली 75 मीटर डेप्थ तक जहाँ यू कैन से होगा वहाँ पे नजर आएंगे हम लोगों को। और अगर आप इन ऑर्गेनिज्म के अंदर की स्कोप ढूंढना चाह रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको इस ऑर्गेनिज्म का सेक्शन काटना पड़ेगा। कौन सा वाला? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लुक एट दिस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप लोगों को इसी पॉलिप के अंदर ही मतलब यू कैन से शामिल नजर आते हैं क्या? गॉनेड्स। Therefore, their medullary stage is very much reduced. It has become part of the polyp. So इसके अंदर आप लोगों को मैं लिखा है आप लोगों के लिए, आपको एक लिए कि ये कॉइंड स्टैक्स हैं गॉनेड जो आप लोगों को नजर आते हैं, और जाहिर है इस पर्टिकुलर गॉनेड में से फिर स्वामिंग के टाइम पे निकलेंगे व्हाट द पैकेट्स ऑफ द गैमेट्स, दे विल बी लिबरेटेड इनटू द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और द सिलेंट्रॉन, and from here they will move into the muscular pharynx, and then they will move out from the mouth and they will continue their life cycle. Now we want to move to the next example that is given in your book, and that is called as called as madrepora. That very madrepora is basically hard. अब तक मैं जितने ऑर्गेनिज्म की बात की है उनमें से सारे सॉफ्ट थे। शायद आपको कल की अगर वीडियो याद हो तो हमने तो आप लोगों को प्रॉपर सी एनिमनी को मूव करते हुए दिखाया था कि ये इतना सॉफ्ट है, ये अपने आप को अटैच कर सकता है पीलर डिस्क के साथ, और अपनी बॉडी की लेटरल मूवमेंट से ये अपनी बॉडी अपने एनिमी से दूर भी जा सकता है आफ्टर गिविंग इट अ पैरालिटिक शॉक, राइट। अब हम बात करें कि ये जो मेरे पास मैड्रीपोरा है ये हार्ड है, कॉमन सेंस। ये हार्ड क्यों है? बिकॉज इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो गया है, कॉमन सेंस। और when these organisms obtain calcium carbonate, definitely they make you can say corals, and the different corals basically combine together to form the coral reefs. और अगर मैं इसी क्लास की बात करूँ तो they are basically anthozoans. अगर मैं इनके यूनिक फीचर की बात करूँ तो these are very strange organisms because they can live together, they can make mammoth structures, perhaps one of the largest structures on the face of earth, one of the oldest creation on the face of earth. इसकी बात हम थोड़ा ठहर के करते हैं, but they are wonderful organisms. And now we want to move to the phenomena process कि अगर ये वाले organism जिन्हें हम corals बोलते हैं, अगर ये coral reefs बनाते हैं तो how they are capable of making what the coral reefs. So let's move to the next column of the word. हम बात कर रहे थे formation of coral reefs की. Listen, I have said medusae, they are free living. It means medusae cannot make the coral reefs. Only thing that can make the coral reef is the polyp, right? So हम क्या करेंगे कि हम polyp से बनवाएंगे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कोरल रीफ्स। और ये वाली कोरल रीफ्स फिर इतना फैल जाएंगी कि ये मेरे समंदर की सतह से उभरते उभरते समंदर से बाहर निकल जाएंगी और इनका अपेरेंट एरिया किलोमीटर्स में हो जाएगा और लोग इसके ऊपर आबादियां बनाएंगे। Are you getting my point? और उन पर्टिकुलर आइलैंड को कि जो कोरल से बने हुए उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोरल आइलैंड। आई थिंक you know very well. One of the very best example is West Indies, right? So जितने भी आप लोगों के पास बारबाडोस टेस्ट हो रहे होते हैं, इस तरह टेस्ट हो रहे होते हैं, they are basically taking place, they are being played on the activity of the corals, marvelous organisms, right? So हम बात ये कर रहे थे कि ये पॉलिप्स हैं,
और पॉलिप्स करते क्या हैं कि वो अपनी बॉडी के बाहर एक स्पेशल किस्म की सेक्रेशन रिलीज करते हैं दैट इज कैपेबल ऑफ हार्वेस्टिंग कैल्शियम आउट ऑफ द वाटर्स ऑफ द सी। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ अपने गिरद सेक्रेशन बनाएंगे और ये वाली सेक्रेशन फिर थोड़े अरसे के बाद हार्ड हो जाएगी ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना घर खुद बना के रहता है। हर ऑर्गेनिज्म में ये भी ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी दी है माय डियर स्टूडेंट्स के ये किसी के बने हुए घर में नहीं रहता, ये अपना घर खुद बनाता है। वो वाला घर जिसमें इसके बावजूद रहते थे उसमें नहीं रहेगा, राइट। तो क्या होगा कि जिस घर में इसके बड़े रहते थे वो वाला घर नीचे दब जाएगा, ये उसके ऊपर अपना घर बनाएगा। इस तरीके से ये वाली रीव्स ऐसा सब बनती चली जाती हैं। अब इस पर्टिकुलर छोटे से स्टोनी कैप्सूल के ऊपर एक छोटा सा होल रखते हैं और इस होल के अंदर ही दाखिल होंगे व्हेन दे आर इन नीड ऑफ व्हाट, फीडिंग। तो जब ये खाना पीना चाहेंगे उस तरह घुस जाएंगे और अपने टेंटिकल्स को पानी के अंदर लहराते रहेंगे। Whenever any food come into their contact, they will release what, a poisonous harpoon and then entangle itself and take it into the body. So कहने का मकसद मेरे पास ये है कि जब ये फीड नहीं कर रहे होते तो ये उस पर्टिकुलर कैल्शियम कार्बोनेट संगे मरमर के बने हुए मकान से बाहर आ जाते हैं, स्विमिंग करते हैं और जब खाने की जरूरत पड़ती है दोबारा उसी शेल में घुस जाते हैं। जब ये मर जाएंगे तो ये अपना घर खाली छोड़ जाएंगे, लेकिन उसके अंदर कोई और नहीं रहेगा, बल्कि इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी या नेक्स्ट जो और अदर पॉलिप्स हैं, दे विल कम ओवर हियर बट दे विल मेक देयर ओन होम। हेंस दीज पर्टिकुलर यू कैन से कोरल रीफ्स दे ग्रो इन देयर साइज, राइट। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट थिंग कि आपने देखा, अभी लुक एट दिस पर्टिकुलर यू कैन से वीडियो, आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट किस्म के ब्यूटीफुल स्टनिंग कलर्स के अंदर नजर आ रहे हैं, व्हाट, ब्राइट कलर्स में नजर आ रहे हैं आप लोगों को कोरल्स। सवाल ये है कि इन कोरल्स के रंग कैसे बनते हैं? तो आंसर है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है कि दे कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोसिस। एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल व्हाट इज सिम्बायोसिस। प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस, राइट। सो बात मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि जब सिम्बायोसिस होगी तो एल्गी हमेशा सेफ रहेगी और एल्गी के प्रोड्यूस होने वाली हाई ऑक्सीजन ये इन पर्टिकुलर यू कैन से ऑर्गेनिजम्स को इरेक्ट रहने में भी हेल्प करेगी और प्लस शेल्टर ये देंगे, प्लस फूड इनको मिलेगी, मींस इन कोरल्स को मिलेगी। तो इस लिहाज से ये आपस में मिल के रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिम्बायोसिस। सो ऑल कलर्स आर बेसिकली ड्यू टू सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द व्हाट, एल्गे। नाउ we want to see कि where is the existence or occurrence of these particular corals। तो सबसे पहली बात है ऑस्ट्रेलिया। मैंने ऑस्ट्रेलिया क्यों लिखा है? बिकॉज के दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ, कोरल्स की बनी हुई चट्टान ऑस्ट्रेलिया के पास है एंड इट इज लाइंग ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको मैप पढ़ना आता है और आप ये समझते हैं कि नॉर्थ हमेशा ऊपर वाली साइड पे होता है और साउथ में नीचे वाली साइड पे होता है, तो हम बात ये कर रहे थे कि जो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो तस्मानिया आप लोगों को नजर आएगा सदर्न साइड पे और आप लोगों को सिडनी नजर आएगा नॉर्दर्न साइड पे। तो नॉर्दर्न साइड पे ये उनका जो सेंट्रल कैपिटल है उसके अराउंड आपको ये बैरियर नजर कॉल्ड व्हाट कोरल रीफ, और इसका नाम मेरे पास क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। आप इमेजिन ये करें कि इसका जो एरिया है दैट इज 2300 किलोमीटर, और अगर आप लोग अपने लाहौर की बात करें तो आप लोगों का लाहौर 1772 किलोमीटर्स है। तो जस्ट इमेजिन कि आपके लाहौर से बड़ी तो सिर्फ उनके पास एक चट्टान है, दैट इज मेड अप ऑफ कोर्स कोरल्स। इट इज द लार्जेस्ट कोरल इन द वर्ल्ड। इसको हमारी जग्गे अजीम 1 और 2 में बहुत लॉस पहुंचा और फिर 20 इयर्स तक इसको डिस्टर्ब होने से बचाया गया और देखा गया कि किस स्पीड से ग्रो कर रही है और इसके ग्रोथ रेट से इसकी एज का भी अंदाजा करने की कोशिश की गई थी। खैर आगे चलते हैं। इसके अलावा हमारे अमेरिका के फ्लोरिडा दैट इज लाइंग एट द इक्वेटर, आपको वहां नजर आएंगे। वेस्ट इंडीज लाइंग वेरी क्लोज टू इक्वेटर एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद these marvelous organisms known as what, the corals। जो एक बात हम आपसे मिस कर गए दैट इज बेसिकली द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को मैंने जरूर डिस्कस करना है बिकॉज दैट वे नर्वस सिस्टम इज अगेन यूनिक। दिस इज इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, एवोल्यूशन। आई लव दिस पर्टिकुलर ग्रुप एज वेल बिकॉज कि इससे पहले तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म थे, वो तो थे ही, यू कैन से वेरी सिंपल,
और वो अटैक भी नहीं करते थे, वो डिफेंस भी नहीं करते थे, लेकिन ये वाले ऑर्गेनिज्म, लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म एक रात को सोए हुए थे तो दे वर जस्ट पॉरीफर्स और सुबह उठे तो जनाब ये क्या बन गए, बड़े हाईली स्पेशलाइज्ड वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स के मालिक बन गए, ऐसा नहीं है। दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में यही कह सकता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मैं आप लोगों से कहना ये चाह रहा हूं हमारे स्टूडेंट्स कि ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस सेल्स की डिफरेंशिएट होने का एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास नर्वस सिस्टम तकरीबन ना होने के बराबर है, वो इतनी ज्यादा इवॉल्व नर्वस सिस्टम का मालिक हजारों साल में नहीं, लाखों साल के एवोल्यूशनरी प्रोसेस के बाद हुआ है। सो अगर आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो अभी भी हम यही बोल रहे हैं कि इट्स नर्वस सिस्टम इज नॉट दैट मच इवॉल्व्ड, इट डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ नर्वस system that can be called as what central nervous system. It don't have any sort of cerebral ganglia or the pedal ganglia or something like it, nothing like that. But look at this कि जिंदगी में जितनी भी मूवमेंट्स थी वो दो किस्म के न्यूरॉन्स की वजह से हैं। मूवमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, one of them is called as sensory neuron, other one is called as a motor neuron. However, their coordination was done by the intermediate neurons. तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मैं जरूर सल्यूट करना चाहूंगा बिकॉज कि दिस वेरी ऑर्गेनिज्म, इसने क्या किया, इसने केबल्स इवॉल्व की और फिर उनको आपस में जोड़ना भी सीखा। तो नेटवर्किंग और केबलिंग नर्वस सिस्टम के जिस ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हुई दैट इज नथिंग अदर देन सिलेंट्रेट्स, राइट। लेकिन अभी भी याद रखने वाली बात यह है कि दिस ऑर्गेनिज्म हैव गॉट मेनी सिंसिटिया। व्हेनेवर वी से द वर्ड सिंसिटिया, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो मसल है, जो एक ग्रुप ऑफ सेल है, इट इज नॉट वर्किंग एट लॉन्गर डिस्टेंस। यानी कि अगर आप इसके लुक एट दिस, ये मेरे पास एक हाइड्रा है या मेरे पास एक सी एनेमनी है और मैं अगर इस पर्टिकुलर सी एनेमनी के राइट साइड पे गुदगुदी करता हूं तो ऐसा नहीं है कि ये इसकी इंफॉर्मेशन इसकी पूरी बॉडी को चली जाती है, बल्कि इंफॉर्मेशन इसकी लोकलाइज्ड होती है, राइट। और इस पर्टिकुलर लोकलाइज एरिया में इस पर्टिकुलर स्टिमुलस के अंदर जितना भी मैस ऑफ सेल आएगा that will be considered as one syncytia, right? So it is a polysyncytial organisms, but they have shown the links between the two types of neurons. They discovered the cables and they discovered what the networking. और आज मैं इस बात पे अपने टॉपिक को खत्म करना चाहता हूं कि so much we enjoy together or we have together, we even remain unnoticed about those things, but they are with us due to the course of billions and billions of years of evolution. तो उस वक्त जब समंदर में लाइफ बहुत सिंपल थी, बहुत स्टैटिक थी, बहुत ही बेरंग थी, जिस पर्टिकुलर ग्रुप ने ओशन को कलर से भर दिया और मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट से भर दिया, नर्वस सिस्टम से भरा, that is none other than Cnidarians. और I just want to say that these are perhaps one of the most magnificent organisms that really rule the still bottoms of the ocean, Cnidarians. So that's all for this phylum Cnidaria. I want to say you Allah Hafiz इस पर्टिकुलर दुआ के साथ कि आप जहां भी रहें बहुत खुश रहें और अपने अंदर से इल्म की